Hello everyone, welcome to Concept Booster classes, and today I am going to teach you the topic of class 12th commerce in accountancy subject, and the topic is tricks to pass journal entries at the time of admission of a new partner. You know that when a new partner is admitted in the partnership firm, we pass journal entries. So for this purpose I have taken one question, and the question is A and B are partners and they are sharing profits and ratio in 3:2. C is admitted as a new partner in the partnership firm and he will take 1/5 share in the profit, and he will share his profit in equal ratio from A and B. Now when new partner is admitted in the firm, then he bring capital and goodwill with him. So in this question, C brought rupees 1 lakh as capital and rupees 50,000 for his share of goodwill in cash. Okay, and on that date general reserve and goodwill already appear in the books is also given in the question. So let's start passing the journal entry. So first we will prepare the format of journal entry. So what are the columns we will prepare? The first column that we will prepare is date column, then particulars, after that LF, and we prepare two columns for amount, one for debit amount and one column for credit amount, rupees debit and rupees credit. So now we will start the journal entry. From first entry we will start. Okay, so new partner C is admitted in the partnership firm and he brought rupees 1 lakh as capital and 50,000 for his share of goodwill. So what will be the journal entry? बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी आ रहा है, और सी अपने साथ में कैपिटल ला रहा है जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज. सो यहाँ पे हमें कैपिटल में क्या पास करना है? रुपीज 1 लाख, और वो अपने साथ जो गुडविल लेके आ रहा है कैश में, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल. सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, and the amount of goodwill is rupees 50,000. Okay, so the total amount brought by C into the firm is rupees 1,50,000. So this entry we will pass at the time of admission of a new partner when the new partner bring capital and goodwill in cash. So this is the first entry, and after that we write the narration being capital and goodwill brought. Okay, this narration we have to write after the entry. Now next entry is we have to distribute the amount of goodwill among the sacrificing partner. And who are the sacrificing partner? A and B, because in this question A and B are sacrificing in their equal ratio. उन दोनों का रेशियो क्या है? 3:2, but they are sacrificing in equal ratio. So the goodwill brought by C is distributed among A and B partners in equal ratio. So what will be the journal entry? Second entry we have to pass प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR. इसको हमें डेबिट करना है, अकाउंट को क्लोज कर देना है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, एंड किसको हम क्रेडिट करेंगे? जो पार्टनर्स यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो कौन कर रहे हैं सेक्रीफाइस? A एंड B पार्टनर्स जो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट. ए के कैपिटल अकाउंट में आपको अमाउंट क्रेडिट कर देना है, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. ओके, एंड इन विच रेशियो वी हैव टू डिवाइड द गुडविल? इक्वल रेशियो, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि सी 1/5 शेयर के लिए आया है और वो अपना शेयर एक्वायर करता है ए एंड बी से इन इक्वल रेशियो. सो द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी इज रुपीज 50,000. ओके, सो वी विल डिवाइड दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 अमंग ए एंड बी in equal ratio, that is 25,000 and 25,000. Okay, so in second entry the goodwill brought by new partner is distributed among the old partners in their sacrifice ratio, and the narration is being goodwill distributed. Okay, now come to next entry, third entry. In question you can see that general reserve is given in the question on the date of admission. Okay, so this reserve is appeared in the balance sheet of the existing firm, old firm. So this amount of reserve will be distributed among the old partners in their old ratio.
बिकॉज द न्यू पार्टनर विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ अमाउंट फ्रॉम दिस रिजर्व। सो इसको हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट DR, इसको आप डेबिट करेंगे और अकाउंट किसका क्रेडिट होगा, जो यहां पे हमारे क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स है A एंड B, इन दोनों के अकाउंट में आपको रिजर्व क्रेडिट करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज 50,000 रुपीज। सो दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स 50,000। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि रिजर्व को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप सभी को ये नोट कर लेना है कि ऑल द रिजर्व्स एंड गुडविल अपीयर इन द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। लेकिन यहां पे आपने ध्यान दिया होगा कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है, वो जो गुडविल अपने साथ लाया था 50,000 रुपीज, दैट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि जनरल रिजर्व जो पहले से बुक्स में अपीयर है उसको हमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो द 50,000 रुपीज विल बी डिवाइडेड अमंग A एंड B इन 3:2। तो इन दोनों का अमाउंट कितना आएगा, 30,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। इन दिस रेशियो दे विल डिवाइड द जनरल रिजर्व अमंग देम। नाउ नेक्स्ट लास्ट एंट्री इज रिलेटेड टू गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। ये गुडविल कौन सी साइड होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। और आप सभी जानते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टिंग गुडविल, द गुडविल विच इज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट विल बी रिटन ऑफ इन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहां पे कहां पे कौन कौन सा रेशियो यूज हो रहा है वो सारा हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रिजर्व्स या जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है बुक्स में, उनको हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जबकि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है कैश में लाओ, चाहे वो अपने करंट अकाउंट से पे करता है, तो उसे हमें सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहां पे हमारी लास्ट फोर्थ एंट्री क्या बन जाएगी, यहां पे हमारी फोर्थ एंट्री बन जाएगी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंड द फोर्थ एंट्री इज वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, राइट ऑफ, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहां पे हमें पार्टनर्स के अकाउंट क्या करने होंगे, डेबिट करने होंगे। तो आप एंट्री बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट DR। ओके, ए का अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है। देन B's कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR, और यहां पे हम नीचे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। समझ में आ गया आपको दोनों गुडविल में क्या डिफरेंस है, दोनों गुडविल में क्या डिफरेंस बताया मैंने आपको। ये जो गुडविल यहां पे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इट इज गुडविल दैट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो इससे हमें क्या करना है, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर जो है क्वेश्चन में A एंड B, उनके ओल्ड रेशियो में हमें क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है। सो द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ₹10,000 एंड दिस 10,000 रुपीज विल बी रिटर्न ऑफ अमंग A एंड B इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2 में हमें इनको राइट ऑफ करना है। तो कितना आएगा, 6,000 एंड 4,000 रुपीज। तो आपको ध्यान में रखने की मैंने क्या रूल बताया कि व्हेनेवर द पार्टनर्स आर रिसीविंग समथिंग, उनका अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। जैसे अगर आप यहां पे देखते हैं एंट्री नंबर 2 पे आप देखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, इट मींस A एंड B आर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, सो देयर अकाउंट इज क्रेडिटेड इन सेकेंड एंट्री। इन थर्ड एंट्री ऑल्सो व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, यहां पे भी हमने A और B का अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि उनके अकाउंट में 30,000 एंड 20,000 का अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अगर आप गुडविल ऑलरेडी अपीयर की बात करें एंट्री नंबर 4, तो ये जो एंट्री है ये पार्टनर्स के लिए लॉस है, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स में राइट ऑफ कर रहे हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहां पे जो A पार्टनर है उसका लॉस हो रहा है 6,000 रुपीज, और जो B पार्टनर है उसका लॉस हो रहा है 4,000 रुपीज। तो ये सभी रूल्स आपको ध्यान में रखने एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या बताया मैंने कि जो भी बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व्स अपीयर होते हैं, ऑलरेडी जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है, तो प्रॉफिट और लॉस भी हो सकते हैं, या फिर हमारी जो गुडविल मैंने आपको बताया ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, इन सबको हमें कौन से रेशियो में करना होता है, all the items are distributed or written off in old ratio of the partners, whereas the goodwill brought by new partner in the partnership form is distributed among the old partners in their
सैक्रिफाइस रेशियो। अब यहां पे क्वेश्चन में क्लियरली आपको बताया गया है कि ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। तो यहां पे ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो क्या देख पा रहे हैं आप, इक्वल है। इट मींस जब नया पार्टनर सी फॉर्म में एडमिट हुआ तो ए और बी ने उसका जो 1/5 शेयर है उसको इक्वल पोर्शन में दिया है। इट मींस इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो। सो द अमाउंट ऑफ गुडविल 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन देयर इक्वल रेशियो, नॉट 3:2, क्योंकि 3:2 कैसा रेशियो उनका, पुराना ओल्ड रेशियो है। ओके, सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन दीज एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।